When God sent human beings to earth, He sent them with one single motto, that is to create beautiful motorcycles. Well, what did human beings do? Well, they divided these motorcycles to various segments. Well, there were some who loved road-based motorcycles, and then there were some who loved adventure motorcycles, and then there were a different breed who loved super sport motorcycles. But what about me, who works from Monday to Friday and wants to chill out on weekends? That's Saturday and Sunday. So guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Nitish Neo. What's up? कैसे हो? कैसा काय? And नमस्कारा हेगिदीरा. I am quite sure कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो. आज जो मेरे सामने है, इतने दिनों से मैं जो बेसब्री से वेट कर रहा था, स्पीड 400 को राइड करने के बाद, एक वो मोटरसाइकिल है जिसने जो 400 सीसी का जो सेगमेंट है इंडिया का, उसको पूरा शेकअप करके रख दिया है विद वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स टू बी ऑफर्ड इन द रोड बेस्ड मोटरसाइकिल्स. उसको राइड करने के बाद भाई इसका क्या हाल है मुझे जानना है इस वीडियो में. So guys, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, then do the like button, subscribe to my channel and share this video with all your friends on WhatsApp या Facebook के ऊपर. अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो नहीं कर रहे हो, then ये रहा मेरा Instagram ID. यहाँ पे काफी ज़रा अपडेट्स देता रहता हूँ, तो यहाँ पे आपके मुझे फॉलो कर सकते हो. So guys, starting with the front, आपको यहाँ पे मिलती है 19 इंच की आपको अलॉय व्हील्स मिल जाती है. एंड ये जो अलॉय व्हील्स है, these are tubeless tires by the way. MRF के टायर्स है यहाँ पे. These are H-rated टायर्स, these are not W-rated टायर्स. H-rated है यहाँ पे. MRF के टायर से 180 सेक्शन का टायर मिलता है. एंड सामने सस्पेंशन जो दिस इज अपसाइड डाउन फोक्स. दिस इज गोल्ड एनर्ज वन व्हिच हैज गॉट अ प्रीटी गुड टेक्सचर हियर ऑन द फोक्स इन फैक्ट. एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इस गाड़ी का जो ट्रैवल है सामने सस्पेंशन का, इट्स ऑफ 150 mm की ट्रैवल आपको मिल जाती है. एंड साथ साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सेल है, इट्स अ फ्लोटिंग एक्सेल ऑन द फ्रंट. दैट्स इंटरेस्टिंग. इंडिकेटर्स हियर आर एलईडी इंडिकेटर्स. हेडलाइट इज एलईडी अगेन. दिस has got a pretty good headlight case as well, and also knuckle guards भी दिया है. knuckle guards के अंदर कोई मेटल का प्लेट नहीं है, बट however these knuckle guards are pretty sturdy, आपको बोल सकता हूँ. On this side the disc here is a 320 mm disc. It's not a pedal disc though, and again apart from that you have a bi-brake calipers which are radial calipers. The brake pads inside these calipers are not sintered ones, these are organic ones. You also have your sump guard here which is pretty good. The bash plate is really nice, it's proper metal one. The ground clearance on the motorcycle is of 195 mm की आपको मिल जाती है. Side stand है, you don't have a center stand on the motorcycle. Side stand cutoff sensor आपको मिल जाती है. 6-speed gearbox है, and I like these fins on the motorcycle, man. This looks beautiful. In fact, it's a liquid cooled engine, so it has this authentic OG Triumph design language on the motorcycle. One thing which I did not like is the visibility of the wires here. Speed 400 में ये दिखते नहीं थे because इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया इस बोन को, तो शायद उस चक्कर में थोड़ा visibility आपको दिख रही है. I wish they would have given an adjustable suspension on the front, but yeah, that is okay. The suspensions are pretty good. The travel is 150 mm, which makes a lot of sense again. And then you have this really nice plate which says Scrambler 400X. A pretty aesthetically a really neat design is what I would say. The welds are really good. They look so nice and beautiful. In fact, the tank shape looks nice. You have these beautiful tank pads on the motorcycle. And साथ साथ में यहाँ पे जो स्विंग आर्म है गाड़ी का, this is aluminum swing arm, no cost cutting at all, which is good. And the rear suspensions, again they are offset suspensions, they are not center set suspensions. And again the travel on the rear is of 150 mm, so both front and rear travels are 150 mm, which is preload adjustable as well. But what's one thing is that suspensions are a little stiff on the rear, and also the stiffness has to play a role with respect to the tires as well, because these are H-rated tires, these are not W-rated tires, and that probably is the reason why you also have feel that stiffness on the motorcycle. And यहाँ पे आपको मिलती है grab rails. Grab rails are pretty sturdy, are of good quality, and the tail light has beautiful diffused DRL here. Let me just switch on the ignition and show this to you guys. This looks beautiful, right? This looks quite premium. In fact, the indicators are LED indicators, and you have a good rear fender here, but what's missing is a tire hugger on the motorcycle. And apart from that, what I could see is the rear tire is a 140/80 section 69H. This is H-rated tire again. MRF Revs K tires are these, and radial tire से ये. And साथ में पीछे का जो डिस्क है उसको मैं बताना भूल गया उस तरफ से. So disc is of 240 mm on the rear, and you get a bi-brake caliper as well. Again, these are organic brake pads, and you get a beautiful dual nozzle, dual barrel exhaust here, which sounds great. Let me go towards exhaust और कुछ ही देर में जाते हैं हम लोग वहाँ पे. एंड साथ साथ में हम लोग बात करते हैं इंजन के बारे में. गाड़ी की जो इंजन है, this here is a 400cc liquid cooled single cylinder engine. This produces 40 PS of power and 37.5 Nm of torque. The गाड़ी का जो weight है, this is of 185 kgs, whereas Speed 400 had a
सेम इंजन, सेम पावर फिगर्स, विच एक्चुअली वेट 9 kg लेसर देन दिस वन, तो शायद पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से आपको कम लगेगा, लेकिन जब आप राइड करते हो तो आपको काफी ज़्यादा मजेदार लगेगा। एंड देन द सीट हाइट इज ऑफ 835 mm, which is pretty tall for a lot of riders out there. If someone's like 5'5", 5'6", then they might not be that comfortable, but again मुझे लगता है कि वो लोग टिपटो कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर। एंड अगेन स्क्रैम्बलर 400X का बैजिंग यहाँ पे है, ट्रायम्फ का लोगो यहाँ पे है, गुड टैंक पैड हियर, द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, दे आर रियली वाइड for the rider. But the pillion seats are decent, I would say. However, the cushioning is superb on a motorcycle. It's not too hard, it's not too soft, it's actually on the mid side is what I would say. Apart from that, गाड़ी की tank capacity है, this is of 13 liters here. E20 OBD2 compliant sticker has been put up. So a lot of people had this doubt on the Triumph Speed 400. So here is your answer, guys. So all the motorcycles are of course E20 and OBD2 compliant, and the handlebars are really beautiful and nice and wide here. They should have given these levers should have been adjustable, मुझे लगता है वही एक चीज़ मेजर मिसिंग है यहाँ पे बाइक के ऊपर। एंड साथ में इंजन की स्विच मिलती है, हज़ार आपको मिलती है, इंजन स्टार्ट बटन आपको मिल जाती है, ऑफ कोर्स नो किक स्टार्ट ऑन द मोटरसाइकिल। एंड यहाँ पे आपको मिलती है पास लाइट, हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। आई बटन टॉगल्स यू थ्रू द फ्रंट कंसोल। Horn is pretty decent, it's not too loud, it's similar to the Speed 400 is what I would say. And apart from that, एक full swipe करती है, काफ़ी ज़रा खूबसूरत से जेटअप हो जाती है ये जो सामने का जो कंसोल है। एंड इनफैक्ट यू हैव योर स्पीडोमीटर, यू हैव योर टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर हियर, एंड आपको मिलती है फ्यूल रेंज, आपको मिल जाती है, मैंने ऑन कर दिया है, सो वी कैन सी हियर फ्यूल रेंज आपको मिलती है, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर आपको मिलता है यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ रोड मोड में भी आप जा सकते हो, सेट कर सकते हो। देन यू हैव योर ओडोमीटर हियर, ट्रिप 1 आपको मिलती है, ट्रिप 2 आपको मिल जाती है, एंड देन आपको मिलती है किलोमीटर पर लीटर, कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ आपको मिल जाएगा, इमीडिएट फ्यूल कंजम्पशन जो चल रही है अभी करंटली, द करंट फ्यूल कंजम्पशन वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन यू गेट योर फ्यूल रेंज एज वेल, द टैंक रेंज। देन यू हैव ऑल योर टेल टेल लाइट्स हियर ऑन द मोटरसाइकिल, हज़ार्ड लाइट हियर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, and ABS, neutral, fuel check light. Apart from that, यहाँ पे engine check light है, engine oil check light है. And what's interesting that I could see on the motorcycle is you'll also have an option of charging your phone using USB Type-C. So they have given a pretty good option, so you can charge your phone on the go. And then in terms of accessories, this has got crazy number of accessories to be offered, which I have shot another video on. And साथ में you also have one more accessory that might come in pretty soon, that is your heated handle grips. Then okay, you have a crossbar as well, which kind of reduces the vibrations, and also if you fall then this will take the impact and the handlebar might not bend, is one of the reasons why इन्होंने इसको दिया हुआ है। So ये बात करते हुए चलते हैं towards the exhaust note of the motorcycle. So guys, now that you've seen the walk around the motorcycle, अभी हम चलते हैं towards the ride review। ये जो है बाइक का चाबी है, चाबी को जैसा दिखता है इसका, ट्रायम्फ का यहाँ पे लोगो है, पीछे ट्रायम्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, द की इज अ मॉडर्न वेवी पैटर्न 1। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे। नाइस, एक फुल स्वाइप करती है, वाओ दिस इज अमेजिंग, फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। हा मज़ा आ रहा है यार। लेकिन भाई यहाँ तो ट्रैफिक है यार। ट्रायम्फ का ना स्क्रैम्बलर का असली मज़ा, ऐसे जो पावरफुल मशीन होती है ना, इनकी असली मज़ा जो होती है वो होती है हाईवे पे या थोड़ा बहुत घाट सेक्शन में जाके हम लोग ट्राई करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, शुड वी गो देयर? राइडिंग गियर्स पहन के निकले वहाँ पे, तो लेट्स गो देयर राइट अवे। लेट्स गो फ्रॉम हियर, इट्स गोना बी अ वन लॉन्ग राइड फॉर मी फ्रॉम हियर टिल पुणे, एंड लेट्स सी कैसा रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ओके, बात करते ही यहाँ पे हम्प आ गया। ओह नाइस, सस्पेंशन आर प्रीटी गुड ऑन द मोटरसाइकिल, अच्छा है। ठीक है, पहली बात हमने बात करें सीटिंग पोजीशन के बारे में। आई एम सीटिंग क्वाइट कंफर्टेबली, क्वाइट अपराइट, सीधा बैठा हूँ यहाँ पे, मैं काफ़ी इजीली बैठा हूँ। इनफैक्ट मेरी जो बैक है पूरा ऐसे सीधा बैठी हुई है, एंड मेरे जो पैर है ऑलमोस्ट सेंटर सेट ही है, मतलब काफ़ी इजीली मैं पैर मेरा सेट हो चुका है यहाँ पे। एंड हाथ जो है हैंडल बार्स के ऊपर आराम से बैठा हुआ है, एंड यहाँ पे देख सकते हो बस मैंने ऐसे बात करते करते कैजुअली टर्न किया। काफ़ी बाइक जो है कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। आई वाज थिंकिंग कि यार सामने का जो फ्रंट व्हील है इट इज़ लार्जर, बट आई थॉट कि यार कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस इंस्टेजिंग नहीं रहेगा, बट इट इज़ सुपर डुपर कॉन्फिडेंस इंस्टेजिंग इज़ व्हाट आई कैन से। मेरे जो नीज है प्रॉपर जैसे चिपक के बैठे हुए हैंड, मतलब टैंक्स को, एंड आई एम सिटिंग रियली कंफर्टेबली ऑन द मोटरसाइकिल, सिटिंग इनफैक्ट अपराइट, काफ़ी ऊपर बैठा हुआ हूँ, एंड इट फील्स सो गुड टू सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल। इट्स सो कॉन्फिडेंस इंस्टेजिंग, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक गुड विजिबिलिटी आपको मिल जाती है ऑन दिस मोटरसाइकिल। ब्यूटिफुल काउज, दैट्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग ऑन द कंट्री साइड हियर। एंड चलते हम लोग यहाँ से। वाओ, yes, the vibrations are there on the foot pegs, I can feel it, and somewhere around 6000 rpm the vibrations are a little prominent on the foot pegs, but are they unbearable? They are not unbearable as such.
Do I find vibrations on the handlebars? No, I don't find vibrations on the handlebars. And wow, do I have vibrations on the tank? Nothing on the tank. They are just there on the foot pegs. And yeah, you know, that's the characteristic of a single cylinder engine. That is what I could see on the motorcycle here. Wow. So इसके brakes कैसे हैं? I am at a pretty decent speed, 100 km/h, and let me apply the front brakes. The brakes are good. One thing I can tell you is कि इसमें sintered brake pads आपको नहीं मिलते हैं, एंड इसमें आपको मिलते हैं ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स, बिकॉज ऑफ इट आपको थोड़ा सॉफ्टर सिटिंग पे ब्रेक पैड्स है इसके. दे आर नॉट as bitey, as immediate as that of the Speed 400, because you know this is a scrambler motorcycle. So scrambler mein you don't have to have a sintered brake pads which suddenly bite you, because if you are, let's say if you are going on a off-road trail and if you apply a brake, it should not happen such that you आप suddenly इसको मतलब ना ब्रेक दबा दोगे एंड बाइक आपकी जो है कंट्रोल से निकल गई ऑफ-रोड करते हुए. तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स दिया हुआ है. आप हमेशा इसको रिप्लेस करवा सकते हो स्पीड 400 के सिंटर्ड ब्रेक पैड से. फ्रंट का आपको बता दिया मैंने, रियर का आपको बता देता हूँ कैसा है. या द रियर इज देयर, द बाइट इज गुड. I like the bite on the rear motorcycle, rear brake pads in fact. It does a good job in terms of the bite on the rear. And talking about the mirrors, what do I see on the mirrors? Oh, खड्डे आ गए. खड्डे को तो यार ये बाइक आराम से निकाल देगी, that is for sure. यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर्स में काफ़ी सही फील्ड ऑफ व्यू है, द क्लैरिटी इज अ लॉट. मेरे हाथ काफ़ी कम दिख रहे हैं इसमें, दैट इज़ वन थिंग विच आई लव्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल. काफ़ी सही है, मतलब यू नो कम दिख रहे हैं हाथ मेरे, एंड आई लाइक्ड इट. इट्स अ गुड जॉब फ्रॉम द एंड ऑफ ट्रायम्फ. मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स में मेरे हाथ दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं. I am really happy about that point, and let's go straight. What a motorcycle, dude. What a motorcycle. Very easy. अभी हम लोग बात करते हैं about the clutch and the gearbox on the motorcycle. How is it? वो देखते हैं एक बार. तो पहली बात तो ये है कि यार क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, एंड आपको साथ में मिल जाती है असिस्टेंट से क्लच आपको मिल जाती है. वेरस द गियर बॉक्स जो है हम लोग बात करते हैं इस हम्प के बाद. सी हियर, काफ़ी इजीली मैं सैडल कर सकता हूँ इस बाइक के ऊपर. वेरी इजी टू सैडल ऑन टू. एंड चाहिए तो मैं अपना नाइस बंदे को पसंद आ गया ये. तो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा इस हम्प. ओके, हम्प पे ही कर देते हैं हम लोग. देखो कितना आसानी से मैं सैडल कर सकता हूँ इस बाइक के ऊपर. दिस इज़ रियली नाइस. गियर बॉक्स कैसा है? गियर बॉक्स काफ़ी सही है, काफ़ी स्लिक है, काफ़ी मक्खन है. इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पीड 400, मतलब कुछ फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ द गियर बॉक्स. अ वेरी सिमिलर गियर बॉक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल. तो बाइक को ना, बाइक की जो व्हील बेस है थोड़ी लंबी है, इट्स अ लिटिल लॉन्गर देन दैट ऑफ द स्पीड 400, लेकिन टर्निंग रेडियस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे जहाँ पे मैंने पार्क किया था, जहाँ से मैंने बाइक स्टार्ट किया था, आई डिड नॉट फाइंड एनी इश्यूज टू यू नो पुल आउट द मोटरसाइकिल एंड स्टार्ट राइडिंग. सो हाउ इज़ द विज. ओ देखो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यार अभी जो ब्रेकिंग किया मैंने, सडन थोड़ा ब्रेकिंग किया मैंने, थोड़ा पैनिक ब्रेकिंग था वो. एंड उस ब्रेकिंग में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि यार मुझे ज़रा भी पैनिक नहीं हुआ. एंड साथ में सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. द सीट्स आर नाइस एंड प्लश. इनफैक्ट अगर आप एक्सेसरीज जो सीट है अगर आप वो खरीदोगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और प्लश बन जाती है सीट इसकी. आई लाइक द सीट ऑन द एक्सेसरीज वर्जन, एंड ऑल्सो द सीट हो हियर प्रीटी कंफर्टेबल, क्वाइट ग्रिपी, एंड ऐसे कोई हार्ड नहीं है. सीट अच्छा किया है इन्होंने. इट्स ऑन द मीडियम साइड. तो मीडियम साइड रखने की वजह से क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो काफ़ी आप इजीली जा सकते हो, एंड अगर आप शॉर्ट स्पिन पे भी जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड ये जो सीट है, सीट आपका बैक का शेप नहीं देगा, मतलब आपका बट का शेप नहीं देगा, बिकॉज ऑफ विच आपका जो स्पाइन है वो इंटैक्ट रहेगा इवन ऑन द लॉन्गर राइड्स. बाइक हैज़ मतलब यू नो हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हेन कंपेयर्ड टू द स्पीड 400. द इंजन इज़ द सेम, लेकिन गाड़ी का जो स्प्रॉकेट है ना उसको चेंज किया गया है. सामने का जो फ्रंट स्प्रॉकेट है वो था उसमें किसमें स्पीड 400 में था 15 टीथ वाला, लेकिन यहाँ पे आपको मिलती है 14 टीथ, मतलब एक स्प्रॉकेट कम मिलती है आपको. बिकॉज ऑफ विच लो एंड जो है अभी भी अच्छा ही है, बिकॉज द इंजन वॉज वेरी ट्रैक्टेबल ऑन द मोटरसाइकिल, एंड अभी भी ट्रैक्टेबल है, कुछ फ़र्क नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि लो एंड में जो थोड़ा क्विकनेस था जो स्पीड 400 में आपको दिख रहा था वो यहाँ पे स्लाइटली लीनियर हुआ है. सी द रेक एंड ट्रेल, रेक इसका कम हो चुका है, ट्रेल इसका बढ़ चुका है, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि रेक कम हो गया है तो गाड़ी जो है थोड़ा अजाइल हो चुका है. आप देख रहे हो यहाँ पे लॉन्गर व्हील बेस होने के बावजूद भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रायल ज़्यादा हुआ है तो लॉन्गर व्हील बेस हो चुका है, लेकिन लॉन्गर व्हील बेस होने के बावजूद भी गाड़ी में आपको एजिलिटी कम नहीं लग रही है. एजिलिटी जो है काफ़ी स्पॉट ऑन है इस बाइक में. सो दैट इज़ समथिंग विच आई लाइक्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल.
अभी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं व्हाट्स मिसिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। गाइस मिसिंग के लिए ऐसे कुछ मेजर नहीं है, देयर इज़ नथिंग मेजर मिसिंग एज सच। लेकिन मुझे लगता है कि यार जो 6000 आरपीएम पे मुझे तो वाइब्रेशंस आ रहे थे वो मुझे स्पीड 400 में नहीं आए, लेकिन वो यहाँ पे आए। दैट प्रॉब्ली इज़ बिकॉज ऑफ द 14 टीथ फ्रंट स्प्रॉकेट, बिकॉज मैं वही बोल सकता हूँ। लेकिन इंजन तो यार सेम ही है। द ट्यून इज़ स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन उतना भी फ़र्क नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग। दैट इज़ व्हाट यू नो, द बोर एंड स्ट्रोक फिगर्स आर द सेम ऑन अ मोटरसाइकिल। द पावर प्रोड्यूस टॉर्क प्रोड्यूस भी सेम ही है मोटरसाइकिल का, तो कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन वो जो 6000 आरपीएम पे जो इसमें बिट ऑफ बज़ आया, वो बज़ स्पीड 400 में मुझे नहीं मिल रहा था जो यहाँ पे मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रंट कंसोल जो है क्लियरली विजिबल है, काफ़ी अच्छा है, एक आपको ट्रायम्फ का फीलिंग दे रहा है। इनफैक्ट मुझे देख के लगता है कि यार डेटोना 675 का थोड़ा बहुत फीलिंग देता है, इज़ व्हाट आई फील। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो क्या आपको लगता है। सो इसका ये था मेरा क्विक राइड रिएक्शन अबाउट द मोटरसाइकिल। आपको जो लगता है मुझे कमेंट करके बता दो। इसका लेट्स गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम चलते हैं मुद्दे की बात की तरफ, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। द पॉइंट इज सिंपल, आई लव दिस मोटरसाइकिल टू द कोर। दिस विल सूट यू इफ यू आर वन सच पर्सन हु लव्स राइडिंग। सिटी में चलाते हैं या अगर माउंटेन्स में लेके जाना चाहते हैं या थोड़े बहुत ऐसे बैड पैचेस जो मेरे आसपास दिख रहे हैं यहाँ पे जाना चाहते हैं, देन उनके लिए काफी सही बनी है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, यू हैव अ गुड सीट, you have a good suspension is a little stiffer than of the Speed 400. Who is in the competition here? In the competition you have is a Scram 411 and you have ESD Scrambler. ESD Scrambler is a pretty decent bike but doesn't have that great low end torque which this offers, whereas Scram 411 has some of those reliability issues. Whereas this one reliability के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज अभी भी नई लॉन्च बाइक हुई है, तो अभी लोग जब चलाएंगे देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। बट 200 किलोमीटर में जो मैंने चलाया है हीटिंग थोड़ा बहुत होता है, बट दैट इज ओके, इज व्हाट आई फील फॉर अ 400cc सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। सो ये सब बात करते करते मुझे लगता है कि यार दिस मोटरसाइकिल विल बी अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, बट कभी कभी लगता है कि 10,000 कम इसका प्राइसिंग हो जाता तो थोड़ा और बेटर होता है, इज व्हाट आई फील। सो इस गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो एज यूजुअल। आई विल एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।